a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page for more updates on your favorite Bollywood celebrities. For now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Shweta and Abhinav's conflict is getting uglier by the day. How did Sonu Sood respond to accusations of taking undue credit? Gautam Gulati confesses hitting Salman Khan while filming a fight sequence. Kangana Ranaut tests negative for COVID-19. सर कभी राधे का बहुत जल्दी जब सलमान सर बोलेंगे उनकी इजाज़त के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। सर की फिल्मों में धमाका होता है। नहीं सर, अभी आप भी हो ना। आप लोगों का प्यार चाहिए तो बहुत इससे प्यार हो काफ़ी। राधे सुपर डुपर हिट है सर, अभी आशीर्वाद मिल गया। गौतम गुलाटी ने क्यों मांगी सलमान खान से माफी? आखिर ऐसा क्या हुआ राधे के सेट्स पे कि सलमान को गौतम की वजह से चोट लग गई? Salman Khan's film Radhe Your Most Wanted Bhai released after almost a year's delay. And though फिल्म को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, फिल्म से जुड़े कई किस्से मीडिया में आए दिन रिलीज हो रहे हैं। कभी दिशा और सलमान के पॉसिबल किसिंग सीन के डिटेल्स, तो कभी सलमान के डांस मूव्स और बिहाइंड द सीन स्टोरीज। शायद ये फिल्म को थोड़ा कम फॉरगेटेबल बनाने की कोशिश है, बट क्या ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो पाएंगे? वेल, दैट रिमेन्स टू बी सीन। टेलीविजन एक्टर गौतम गुलाटी राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में रणदीप हुडा के एक हेंचमैन का रोल प्ले कर रहे हैं। The actor, who was also a part of a reality show hosted by Salman Khan, was part of a fight sequence जहां उन्हें खुद सलमान के साथ हाथापाई करनी थी। शायद गौतम सलमान के साथ सीन शूट करने के ख्याल से नर्वस हो गए और उन्होंने एक टेक में सलमान को गलती से मार दिया। राधे में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए गौतम ने बताया कि वो पहली बार एक एक्शन सीक्वेंस को शूट कर रहे थे, which made him very nervous. I had to learn some things. As a hero, I know what I have to do. How to fight, how to attack with style. But this time I was playing a villain, so had to learn how to take punches, he shared. Unfortunately, he ended up hurting Salman a little bit when he accidentally hit him during a take. गौतम ने बताया कि सलमान चोट खाकर थोड़े से शॉक थे, लेकिन गौतम apologized immediately and Salman told him not to worry too much about it. इस इंसिडेंट के बाद गौतम बहुत केयरफुल हो गए and he made sure to stay extra safe during fight scenes. गौतम, जो सलमान खान के होस्ट किए गए रियलिटी शो का भी हिस्सा रह चुके हैं, शेयर कि सलमान ने उनके काम की कई बार तारीफ की and he was happy with the way Gautam played his role. In other news coming from behind the scenes of Radhe, Salman's body double Parvez Khan ने राधे के सेट से कुछ पिक्चर शेयर किए हैं where he is twinning with Salman in the same t-shirt and checked shirt. Parvez captioned his post with Bhaijan on set #Radhe #body double. Parvez has also worked with Salman before in Bharat, Dabang 3 and Prem Ratan Dhan Payo. रेमडेसिविर का तो पेशेंट का डिटेल देना, कुछ भी रहेगा मेरे लाइफ में बताना प्लीज। सोनू भाई की उम्र लंबी करे अल्लाह ताला और उनको दिन दुनी रात चौगनी और अच्छा से अच्छा रखे, उनको हर बला हर मुसीबत से बचाए भाई को। सोनू सूद ने साबित किया अपने आप को बेगुनाह। सोनू ने पेश किए सबूत और दिया जवाब अपने क्रिटिक्स को। Sonu Sood has been nothing short of a messiah in these trying times. सोनू ने हर तरह से पैंडेमिक से पीड़ित लोगों की मदद की है, whether it is helping people find a hospital, bed, oxygen or medicines. सोनू ने अपने फाउंडेशन के थ्रू कॉमन मैन और सेलिब्रिटीज सबकी मदद की है. But sadly, even after so many good deeds, there are still those who would like to believe he is a fraud. Take a look. Sonu Sood has been working tirelessly to help those affected by the pandemic. हर रोज उनके पास हजारों मदद की रिक्वेस्ट आती है
and he and his team respond to each one personally. वो के मसीहा बन के खड़े हुए हैं यार, और क्या चाहिए उनसे बड़ा। ऐसी ही एक रिक्वेस्ट उन्हें आई थी गंजम से, जहां एक लोकल ने सोनू को मैसेज किया था एक हॉस्पिटल बेड के लिए विद ऑक्सीजन सपोर्ट। सोनू और उनके फाउंडेशन ने पेशेंट के लिए बेड ऑर्गेनाइज किया, लेकिन शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सोनू की मदद को लेकर कुछ डाउट्स थे। द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर गंजम ने सोनू पे सवाल उठाते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, We didn't receive any communication from Sood Foundation or Sonu Sood. Requested patient is in home isolation and stable. No bed issues. एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि सोनू ने उन्हें मदद की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड नहीं की, लेकिन मदद देने का क्रेडिट लिया। अब सोनू ने अपनी सफाई में भी सबूत पेश किए हैं। इन अ पोलाइटली वर्डेड पोस्ट, सोनू ने पेशेंट की फैमिली के साथ एक्सचेंज किए चैट मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए और कहा कि उन्होंने कभी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को कांटेक्ट नहीं किया था and had resolved the request on their own. Sonu responded with a social media post that said, Sir, we never claimed that we approached you. It's the needy who approached us and we arranged the bed for him. Attached are the chats for your reference. Your office is doing a great job and you can double check that we had helped him too. Have DM'd you his contact details. Jai Hind. Recently, सोनू ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट शेयर किया था alerting people to a fake account that was created in his name. इस फेक अकाउंट के थ्रू स्कैमस्टर्स लोगों से डोनेशंस के नाम पे पैसे चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। सोनू ने इस फेक ऑर्गेनाइजेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, Please beware and report to your nearest police station while marking the pictures as fake. More power to you, Sonu Sood. आपने वाकई जेनरोसिटी और सेल्फलेसनेस की नई मिसाल कायम की है। हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। God bless you, God bless you. आज मेरी रिपोर्ट आई है कोरोना की, जो कि नेगेटिव है। आज से कुछ दिन पहले जब मैंने टेस्ट करवाया था तो मेरा जो सिटी काउंट है अराउंड 18 था, जो कि काफ़ी लो था। तो ये 7-8 दिनों में मैंने जो वायरस को क्योर किया है। तो पिछली बार जब मैंने ये अनाउंस किया तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे कि मैंने कहा कि लेट्स बीट दिस स्मॉल टाइम वायरस। कंगना रनौत पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए नेगेटिव टेस्ट हुई है, लेकिन लगता है पैंडेमिक को सीरियसली लेने वाले लोगों का मजाक उड़ाने की उनकी कोशिशें आज भी जारी है। कंगना रनौत ने जब पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को स्मॉल टाइम फ्लू कहा था, शी हैड ऑफेंडेड मेनी पीपल हु हैड बैटल्ड द वायरस एंड दोज हु हैव लॉस्ट लव्ड वंस टू द पैंडेमिक। सेंसिटिविटी कंगना का स्ट्रॉन्ग पॉइंट कभी नहीं रहा है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश में दूसरों को नीचा दिखाने की ये उनकी फितरत एक दिन उनके लिए शायद काफी मुश्किल पैदा कर सकती है। Kangna has recovered from the pandemic-related virus and shared that she has tested negative. कंगना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वो इस बात को शेयर करना चाहती है कि किस तरह उन्होंने पैंडेमिक को हराया, लेकिन वो पैंडेमिक के फैन क्लब्स को ऑफेंड नहीं करना चाहती। She added, "Yes, there are actually people out there who get offended if you show disrespect towards the virus. Anyway, thanks for your wishes and love." Well, कंगना, अगर पैंडेमिक फैन क्लब से आपका मतलब उन लोगों से है जिनके रिश्तेदार हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए इंतजार कर रहे हैं, या वो जिन्होंने अपने पेरेंट्स, स्पाउसेस या छोटे बच्चों को भी पैंडेमिक रिलेटेड वायरस से हुए कॉम्प्लिकेशंस की वजह से खो दिया है, तो शायद वो इस वक्त किसी के भी सेल्फ प्रेज समारोह से दूर ही रहना पसंद करेंगे। The second wave of the pandemic has had a devastating impact on the country और इससे हुए दुख को अंडरमाइन करना या इसका मजाक उड़ाना वाकई शर्मनाक है। कंगना जब पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुई थी, she had shared the news with a rather controversial post that had offended almost the entire nation. Calling it a small time flu, कंगना ने लिखा था, I have quarantined myself.
I had no idea this virus is having a party in my body. Now that I know, I will demolish it. It is nothing but a small time flu, which got too much press and now psyching few people. जब उनके इनसेंसिटिव पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डिलीट कर दिया, कंगना हैड गॉन सो फार एज टू अलेज कि ये पैंडेमिक के फैन क्लब मेंबर्स की वजह से हुआ था। जस्ट अ फ्यू वीक्स अगो कंगना को एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म से परमानेंटली बैन कर दिया था, जब उन्होंने वेस्ट बंगाल में हो रहे वायलेंस को लेके कुछ इन्फ्लेमेटरी पोस्ट लिखे। आपने इस वायरस का डट के सामना किया और आप रिकवर हो गई है, इस बात की सबको खुशी है कंगना जी। But to mock the grief and pain of others who have lost jobs, homes and family members to this pandemic by calling it a small time flu, insensitive तो है ही, लेकिन लोगों में पैंडेमिक के प्रति गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के बराबर भी है। Get well soon, कंगना। बिग स्क्रीन पे बड़े बड़े मूवी स्टार्स को शायद हम कई और दिनों तक नहीं देख पाएंगे, लेकिन स्मॉल स्क्रीन के सेलेब्स अपने एंटरटेनिंग और कंट्रोवर्शियल हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन कर रहे हैं। रोमांस, झगड़े या फिर फैशन फॉफा, there is always something cooking when it comes to our television and social media celebs. भागो भागो भागो। Actor Karan Kundra, who recently joined the show Ye Rishta Kya Kehlata Hai, has shared a video showing the chaos and damage on their show's sets in Silvassa due to cyclone Taukte. कई शोज लॉकडाउन की वजह से मुंबई से बाहर शूट कर रहे हैं और ये रिश्ता क्या कहलाता है कि टीम सिलवासा में है। अनफॉर्चुनेटली साइक्लोन की वजह से वहाँ भी काफी तेज हवा और बारिश थी, जिसकी वजह से आउटडोर शूट रोक देना पड़ा। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह का अगला गाना खट तैनू मैं दस्सां रिलीज हो चुका है। The couple who fell in love while working on a music video, नेहू दाव्या, will be collaborating for the third time with this song, जहां दोनों एक बिल्कुल नए अवतार में दिख रहे हैं। नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से इस गाने के लिए काफी बज़ जनरेट किया था and it looks their fans will enjoy this new song of theirs as well. Rubina Dilaik और उनकी छोटी बहन ज्योतिका, who both tested positive for the pandemic-related virus, are recovering together in Shimla. रूबीना दिलाइक ने अपने सोशल मीडिया पेज पे ये पिक्चर्स शेयर किए हैं, जहां वो और उनकी बहन बेड पर लेट के बाहर की सीनरी एंजॉय कर रही हैं and are making the most of the fresh air as they recoup from a difficult illness. नूरा फतेही has shared a video on social media जहां वो जिम में वर्कआउट करने की जगह डांस कर रही हैं। नूरा फतेही अपने डांस स्किल्स के लिए मशहूर हैं and she also has a fabulous physique that she works out and is hard to maintain. But it looks like जिम में भी नूरा फतेही डांस नहीं भुला पा रही थी and started enjoying some cool dance moves in between her workout. Politician and social media celebrity Sonali Phogat is being massively trolled after glimpses of her upcoming music video A Week went viral on social media. लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों सोनाली फोगाट ने भी उस तरह की वीडियो का हिस्सा बनने के बारे में सोचा, which does not suit her personality at all. बिग बॉस के सबसे क्यूट कपल अली गोनी और जैस्मिन भसीन हमेशा चर्चा में रहते हैं। Recently, Ali Goni posted a picture where he is holding a cold drink in his hand and looking intensely at the camera. इस पिक्चर में उनकी गर्लफ्रेंड जैस्मिन भसीन ने कमेंट पे लिखा, कभी इतनी अच्छी पिक्स क्लिक करने का क्रेडिट भी दिया करिए। इस क्यूट बैंटर के बाद अली गोनी का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वो मटन सीख कबाब बना रहे हैं एंड इज हैविंग अ बारबेक्यू पार्टी। क्या कर रहा है अली? मटन सीख, कश्मीरी मटन सीख बोटी। वाओ, चर्बी भी है, मस्त है। ये वाला वाइट वाला भी है, ये वाला भी है, चिकन है और ये। तो आज आप टिक्के वाले बने हो? वहाँ देखिए, वहाँ पे बारबेक्यू है। चलिए प्लैनेट बॉलीवुड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। Dude, I don't want to stay with you. Dude, I don't want to stay with you. मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँगा। मेरे बच्चे को अबैंडन करके छोड़ के किसी होटल में मेरी वाइफ चली गई है। इतनी रिस्की सिचुएशन में अगर आप एक बच्चे को छोड़ के चले जाते हो, you have neglected him and this is risk of life because of pandemic. So ladies, come out of this pain. I don't care about this. अभिनव कोहली एंड श्वेता तिवारी के बीच गहरी होती जा रही है दरारें। डोमेस्टिक वायलेंस चार्जेस, चाइल्ड कस्टडी को लेके झगड़े और हैरेसमेंट के एलिगेशंस ने उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? ऑलरेडी तुम बहुत गिर गई थी, तुम बस गिरती ही जा रही हो।
दोनों ही सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे पे वार कर रहे हैं एंड आर रिवीलिंग इंक्रीजिंगली कंट्रोवर्शियल एंड डैमेजिंग डिटेल्स अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ देयर रिलेशनशिप। बेबी कोई बात नहीं बाबा, ऐसे मान डरो सुना। बेबी ऐसे मान डरो, दीदी है ना, दीदी है बच्चे, मान डरो बच्चू। माय गॉड यार। श्वेता और अभिनव के झगड़े के बीच पिस रहे हैं उनके बेटे रेयांश और श्वेता की बड़ी बेटी पलक, who are bearing the brunt of this very public falling out. It is deeply unfortunate when any marriage ends. लेकिन जब दो सेलिब्रिटीज अलग होते हैं तो अक्सर उनके इश्यूज पब्लिकली डिस्कस होने लगते हैं। There are some couples who refuse to wash their dirty laundry in public and trade accusations. लेकिन कई बार जब ब्रेकअप या सेपरेशन मेसी हो तो पब्लिक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हो जाता है। श्वेता और अभिनव married in 2016 and everyone were hopeful that they will have a happily ever after क्योंकि श्वेता's first marriage had been an abusive one. लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2019 में श्वेता ने अभिनव के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया एंड थिंग्स हैव गॉन कंप्लीटली साउथ सिंस देन। लेकिन आखिर क्या रीजंस थे इस रिलेशनशिप के इस कदर बिखर जाने की? टेक अ लुक। मेरी याद आती है तुमको? बहुत याद आती है। अभिनव के एलिगेशंस। जब आएगा तब जाओ ना। धक्का मत मारो। Abhinav Kohli has been fighting tooth and nail to get the custody of Reyansh, जो उनके और श्वेता के बेटे हैं। अभिनव जो इनिशियली इस कहानी के विलन बन गए थे and continues to face allegations of domestic violence and harassment from Shweta, has been hitting back with multiple posts and videos on social media, जहां वो श्वेता के accusations का जवाब दे रहे हैं। मई 2020 तब से मुझे मेरे बच्चे से दूर करा गया। हर जगह जाके मैं कोशिशें करता रहा कि कोई मुझे हेल्प कर दे और मेरे बच्चे से मिला दे। खैर वो हो नहीं सका। अभिनव ने कई इंटरव्यूज में ये भी अलेज किया है कि उनके खिलाफ लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस के इल्जाम झूठे हैं। द एक्टर हैड क्लेम्ड कि श्वेता की बेटी पलक उन्हें घर से निकाल देना चाहती थी क्योंकि अभिनव डिडंट अप्रूव ऑफ हर बॉयफ्रेंड। अभिनव हैज अलेज्ड दैट एक झगड़े के दौरान पलक ने अपनी मां से कहा, मम्मी किक हिम आउट ऑफ द हाउस, जिसे सुन के अभिनव को बहुत धक्का लगा। अकॉर्डिंग टू अभिनव, श्वेता ने उन्हें एक नौकर की तरह ट्रीट किया है। He had said in an interview, कार में पेट्रोल भराने से लेकर रेयांश के लिए कुछ खरीदना है। I was always there. Whenever she needed me, be it 2 a.m. or 4 a.m., I was there because I wanted to stay with my baby. But now she is not letting me meet him. She has treated me like a servant. अभिनव का ये भी एलिगेशन है that contrary to Shweta's accusations of domestic violence, it was she who has hit him with a stick. The actor has also alleged that उनके बेटे रेयांश अपने पापा के साथ यानी कि अभिनव के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन श्वेता is deliberately keeping the two apart. मुझे नहीं आना, लेकिन पापा आओगे ना? ना, अभी मैं पापा के साथ ही लेने वाला हूँ। According to him, जब पिछले साल श्वेता पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट हुई थी, उनकी मां और बेटी पलक दोनों ने रेयांश को संभालने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने रेयांश का ध्यान रखा था and his son was very happy. लेकिन श्वेता ने पुलिस बुलाने की धमकी दी और उनके बेटे को वहां से ले गई। अगर तुम सो जाओगे मम्मी के कंधे पे तो उसके बाद तुमको कहाँ जाना है? वो इस वक्त वही बोलेगा ना जो तुमने उसको सिखाया है। तुमको कहाँ जाना है? पापा के घर जाना है ना कि मम्मा के घर? अगर मम्मा के घर, क्योंकि मम्मी अभी तुमको सुला के अपने घर ले जाएगी। फिर इस तरह मत करो अभिनव, इस तरह मत करो। सिर्फ मम्मी को बोल दो क्या करना है, फिर मम्मी तुम जबरदस्ती नहीं कर सकती। अभिनव ने ये भी कहा है कि उन्होंने श्वेता को एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए केप टाउन जाने से मना किया था and had asked that he be allowed to look after his son in her absence. But Shweta refused and has left their young son behind with her mother and Palak. जब मैं जिंदा हूँ, मैं उसका नेचुरल गार्डियन हूँ, तो नानी और बहन का कहाँ, वो क्यों रखेंगे और कहाँ रखा है? घर पे भी नहीं। तुमने सिर्फ इलीगली डिटेन नहीं किया है लड़के को, तुमने उसको एक अनडिस्क्लोज लोकेशन पे भी डिटेन किया हुआ है। When she retaliated with a controversial CCTV clip and another video,
Abhinav has alleged that in the CCTV clip where she said that he pushed her, she had sat down herself and made it look like he had pushed her just to make him look bad. उन्होंने खुद सोशल मीडिया पे ऑलमोस्ट 1 घंटे का लंबा पोस्ट डाला, supposedly showing proof of his innocence. Shweta's allegations against Abhinav. Shweta Tiwari is a successful TV and film actor, लेकिन unfortunately she has been unlucky in love. After summoning up the courage to leave an abusive marriage to Raja Chaudhary with her daughter Palak, Shweta ने अभिनव के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, and the two welcomed baby Reyansh, who only seemed to strengthen their bond. लेकिन it looked like trouble started brewing soon when the two were not spotted together all through 2017. उस वक्त जब श्वेता से पूछा गया कि आखिर वो और उनके हस्बैंड एक साथ क्यों नहीं दिखाई देते, तो श्वेता had said that Abhinav was traveling back and forth between Mumbai and Bengaluru to help his mother after his father's demise. रेयांश के जन्म के बाद कुछ वक्त तक सब ठीक था, but things took an ugly turn when Shweta filed a case of domestic violence and inappropriate behavior against her husband and alleged कि अभिनव ने उनकी बेटी के साथ बदतमीजी की थी. I will fight and you can only win against me by killing me now, Shweta. That's it. There's no other way. Palak later clarified in a social media post कि अभिनव ने कभी उन्हें physically abuse नहीं किया था, but he had made inappropriate remarks जो वो और उनकी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाए. श्वेता attacked अभिनव जब उन्होंने पलक के सोशल मीडिया प्रोफाइल के कई स्क्रीनशॉट्स अपनी टाइमलाइन पे शेयर किए, आस्किंग कि क्यों उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन पोस्ट डिलीट किया था. श्वेता was obviously disturbed by Abhinav using her daughter's posts in their marital conflict, and she left a comment on his social media page saying, "Stop posting about my daughter. This is harassment. You know what you did." अच्छा, दोबारा भी प्रॉब्लम? ऐसा हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता भाई? क्यों नहीं हो सकता? कम से कम मुझ में गट्स है कि अगर दोबारा प्रॉब्लम हुई तो मैं पैरों पे खड़ी होकर बोल सकी बिना डर के कि आप लोग मेरे बारे में क्या लिखेंगे. मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे इसका फ़र्क पड़ा कि जो मेरे बच्चों के लिए सही है, जो मेरे लिए सही है, जो मेरे घर के लिए सही है, जो बच्चों की ग्रोथ के लिए सही है, वो मैं करूँगा. When Abhinav alleged कि वो जानबूझकर रेयांश को उनसे दूर रख रही है, she shared a CCTV footage from her building and accused Abhinav of trying to snatch the child from her and pushing her down. श्वेता का कहना है कि रेयांश अपने पापा के साथ रहना नहीं चाहते and that Abhinav has scared him with his behavior. There have also been allegations from her about Abhinav not providing financially for their son. श्वेता और अभिनव का ये बहुत ही ugly और public spat is not just sad and deeply unfortunate. It is likely to cause a lasting impact on their son and her daughter. While a marriage ending can be a painful experience for both partners, perhaps the two should try and sort out their differences in a more amicable manner with proper counseling and guidance. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. I hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and comments in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chhetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But you guys know the drill. Stay home, stay safe.